क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे गांव वाले लोग हैं। कौन लोग हैं बेटा? विलेजर्स। हाँ, अब मैं अपने सारे ऑफिशियल और सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन देके अपनी सीट पे बैठे। 1 बाय 1 आएंगे जैसे सीरियल था। Myself, Sanjana from class 11. I am ward member of ward number 1. Ward member Health and Sanitation Committee Head. Health and Sanitation Head. I ensure every family has clean surroundings. Health assists to good health and practice. Thank you. Myself, Sanjita from class 11. I am ward member of ward number 2 and ward member Education Community Head. As Education Head, I act as guardian for children. No child is left behind. Thank you. Myself, Joshua from class 11. I am ward member of number 3 and Environment Committee has an environment. I protect land, water, far air today and future generation. Thank you. Myself, Mohini, class 11. I am ward member of ward number 4 and Sports Cultural Committee Head. As Sports and Cultural Head, I promote fitness, creativity, and cultural pride for all villagers. Thank you. Myself, Janomi from class 11. I am ward number 4, citizen elder woman. As an elder woman, I bring wisdoms and guide younger generation. With career in Gram Sabha, my voice injures women, families, and vulnerable groups are heard. Thank you. Myself, Rupasi, class 11, SSG members youth group. As a member of the youth SSG, I turn skill into livelihood by making products that support my family and village economy. Thank you. Myself, Drishti, class 11, humanities, act as the ASA worker. I am the bridge between the committee and health service. My role is to guide family towards safe deliveries, healthy habit, and timely treatment. By caring for every home, I help my village stay strong and healthy. Thank you. Myself, Babisa, class 9 and has as an NGO worker, I stand beside the community to strengthen their voice and brings new knowledge, skill, and partnership. Thank you. Myself, Zosie, class 9 at SA ASA workers. I am the bridge between the community and health service. My role is to guide families towards safe deliveries, healthy habit, and timely treatment. By caring for every home, I help my village stay healthy and strong. Thank you. Myself, Arman, from class 11. I'm a ward member of ward number 4. Has the Krishi Sahayak, I bring knowledge of farming, seed and soil and scheme. My role is to guide for farming toward better harvest, eco-friendly practices and support from government scheme. Thank you. Myself, Asim, from class 11. I am ward member of Ward 4.
As a youth, I bring energy and idea. My role in Gram Sabha is to make sure youth boys are hard and build to better a future together. Thank you. Myself, post class 9. I guess the data entry operator. I make sure. I make sure data is recorded digitally. My role is to ensure accuracy and timely entry of data so that people get delay without delay. Thank you. Myself, Peter Amro, class 11. I'm Panchayat Secretary. I'm the bridge between government rule and village action. My role is to guide the sarpanch and ward member with proper record, rule and procedure so that Gram Sabha decisions are lawful open to all and reach every household. Thank you. Myself, Daros, class 9. I act as a headmaster in school. So, as the headmaster, I guide children education and build trust between school parent and community. My role is to lead learning and ensure every child feels safe and included. Thank you. Myself, Mijori, from class 11 Humanity. As the elected leader of the Gram Panchayat, I carry the voice of the people and guide the village toward process. My role is to listen with care, bring everyone together, and make sure decisions reflect the need of the including women, youth, elderly, marginalized, and children with special needs. Thank you. अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रोग्राम को शुरू करने के लिए अनुमति दें। Good morning, everyone. This Model Youth Gram Sabha, VCP सबको मालूम है? Village Council President. Village Council in Hindi, it is called Gram Panchayat. This is a very good initiative of Ministry of Gram Panchayat and Education. Because these children will learn how Gram Panchayat work, what problems in Gram Panchayat we face. Here they will learn, they will get the experience, the hands-on experience of this Gram Panchayat, its problems and civic responsibility. Because you know the सरपंच को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट. यहाँ होता है ना, मिजोरम में क्या बोलते हैं? वीसीपी, विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट. हिंदी में उसको बोला जाता है सरपंच. Other members you can see ASA worker, NGOs and other headmaster, maybe some school is also included. All these members, they run a Gram Panchayat. So it is a very good initiative, and I see in here Alok sir and all these members, definitely they have hard work done here. सभी ने अच्छा मेहनत किया हुआ है और प्रोग्राम जो है हमारा सक्सेसफुल रहेगा. तो सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से ये परफॉर्म करना, बिकॉज वी विल सेंड दिस वीडियो टू हायर अथॉरिटीज एंड इफ दे सेलेक्ट they have to represent this program somewhere as they will decide. Okay, so once again congratulate all of you. You perform well and do well. Thank you.
नमस्ते सभी को और सभी को स्वागत है इस प्रोग्राम में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी अफसर भी है और पुप्पोई ऑफ BCB को भी मैं वेलकम करती हूँ और उसकी अनुमति लेकर मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने गांव में एक कमलेश ढोलक पाया था, वहां से हमें 5 मुद्दे सामने मिले हैं। हम पहले मुद्दे से शुरू करना चाहेंगे। स्वच्छता और प्लास्टिक से मुक्ति के बारे में किसी को कुछ शिकायत सुझाव है तो बताइए। सरपंच जी, मुझे बोलना है। जी सरपंच जी, आजकल हम लोग का गांव में प्लास्टिक इधर उधर बेकार में पड़े रहता है और बच्चे भी खाकर इधर उधर फेंक रहे हैं, जिससे गंदगी बढ़ता जाता है। अब इसका हम लोग क्या करें? अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, यह बुढ़े और बूढ़े भी गुटखा खाकर उसके रे पर फेंक रहा है। प्लास्टिक के वजह से नाली बंद होते जा रहा है, जिससे कि बरसात में पानी जमा होता है। हम जब इकट्ठा करके जलाते भी है तो हमारा जंगल में आग लगने का डरना और बदबू भी आती है। अरे तो क्या इसकी वजह से बच्चे मैगी टॉफी बिस्किट खाना छोड़ दे और बड़े क्या गुट्टा खाना छोड़ दे? सही बात है। जी नहीं, ये खाने और ना खाने की बात नहीं है। यहाँ पे हम सुधार करने के लिए एक हुए हैं। किसी के पास कुछ समाधान है तो और बताइए। जी सरपंच जी, हम अगर गांव में डस्टबिन लगवा दे तो सब उसी में फेंकेंगे और ये बात हम बच्चों को भी सिखाएंगे और ये बात स्कूल में भी बताया जाए तो सही रहेगा। सही बात है। हम सीमेंट को कूड़ा कर गांव के बाहर बांधवा दे तो कूड़ा जलाने से नुकसान नहीं होगा। नहीं, कूड़ा हरगिज नहीं जलाना चाहिए। गांव में सरपंच जी कूड़े इकट्ठा करके फेंकवाने की व्यवस्था बनाएंगे। सही बात है। तो क्या कहते हो, कूड़ा गाड़ी सप्ताह में एक बार आए और कूड़ा को लेके जलाए? सही बात है। सेक्रेटरी जी, आप सब ये नोट कीजिए, 10 डस्टबिन लगवाना चाहिए और कूड़ा गाड़ी का व्यवस्था कीजिए। मैं जल्द से जल्द ये दोनों चीज करवाने की व्यवस्था करवाता हूँ और लेकिन सिर्फ ये करने से नहीं होगा, आप लोगों को भी सहयोग होना पड़ेगा। इसमें हम NGO का भी मदद ले सकता है। गांव के स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत आए हैं इस चीजें और स्कीम भी आए हैं। आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम जरूर होंगे। तो हम अगली समस्या की बढ़ते हुए, ये समस्या है हमारे स्कूल के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, क्योंकि जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो गांव भी आगे बढ़ेगा। और इसके बारे में किसी को कुछ शिकायत है तो बताइए। हाँ सरपंच जी, मुझे बताओ। हमारे स्कूल में टीचर्स की भारी कमी होने से बच्चे भी स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। हमारा स्कूल टीचर भी दूर से आने के कारण एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं ले सकते हैं। आसपास कोई टीचर मिलता तो अच्छा होता। सही बात है। हाँ सरपंच जी, और तो और हमारे बच्चे ट्यूशन के लिए दूर जाता है और फीस भी ज्यादा लगता है। आप ही कुछ कीजिए इसमें। ये भी सही बात है। सही है। स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए कोई उपाय हो सकता है क्या? क्योंकि अब तो मेरा बच्चा पढ़ाई से डरने लगा है। हे भगवान, अब ऐसा ही चलता रहा तो क्या ही होगा मेरा बच्चे का। हाँ सरपंच जी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल का बिल्डिंग बहुत ज़्यादा टूटा है
और बच्चे उसका देखकर बहुत भावना कहते हैं। और स्कूल टूटने से बचे हमारा लड़के और लड़का का बाथरूम ठीक होना चाहिए। स्कूल के मिड डे मील को भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए और स्वाद में कुछ सुधार किया जाए तो अच्छा होता। जी जी, और किसी के पास कुछ सुधार के लिए है तो बताइए। सरपंच जी, मेरे ख्याल से गांव में कुछ युवा लड़का हमारे जैसे हैं जो एक्स्ट्रा क्लास सब में ले सकते हैं। सेक्रेटरी जी, आप में इसमें क्या विचार है? इतना तो पसंद नहीं है कि पूरा स्कूल ठीक किया जाए, लेकिन ये हम धीरे धीरे कर सकते हैं। लड़की लड़का का बाथरूम बनाया जाएगा। गांव के जो युवा लड़का है वो एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है। वो मीटिंग के बाद अपना नाम देगा। हम देंगे। और हमारे बीच हमारे गांव के हेडमास्टर भी है, उनसे हम कुछ सुनना चाहेंगे। मैं इस स्कूल का हेडमास्टर होने के साथ साथ इस गांव का निवासी भी हूँ। इस बार बहुत लोग ट्रांसफर चले गए, इसलिए टीचर की कमी है। फिर भी हमारे टीचर बहुत मेहनत से फरार है। यह सचिव जी, मैं चाहता हूँ इस समस्या का समाधान करें और स्कूल का बजट भी पास करें। धन्यवाद। ये भी सही बात है। तो हम तीसरी समस्या की ओर बढ़ते हुए, जो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है, क्योंकि हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड होता है। इसके बारे में किसी को कुछ सुझाव देना है और कुछ बताना है तो बताइए। हाँ सरपंच जी, हमारे गांव में एक हॉस्पिटल होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल भी नहीं है। ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरा गांव में जाना पड़ता है, और दूसरी तरफ रास्ता भी बहुत खराब है, किराया भी ज़्यादा लगता है। सही बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आशा वर्कर हूँ, और जब गांव में मैं वैक्सीन लगाने जाती हूँ तो सब डरते हैं। अरे सरपंच जी, वैक्सीन के बारे में कोई नियम मत बनिए, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि पहली बार वैक्सीन लगवाने के बाद कमजोरी आ गई थी। नहीं, आपको इन बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। इन नए जमाने में ऐसी वाली बातों का विश्वास मत कीजिए, और आप सब भी मत कीजिए। और कुछ सुझाव है तो बताइए। हाँ सरपंच जी, अरे हॉस्पिटल बनना तो दूर की बात है, यहाँ तो एम्बुलेंस बुलाने पर भी बहुत देर से आता है। जब तक आता है तब तो आदमी ऊपर चला जाता है। सही बात है। अरे ओ सरपंच जी, एक जरूरी बात यह है कि बच्चे भी अक्सर मौसम खराब होने से बीमार हो जाते हैं। अगर नियमित हेम लगे तो वो भी ठीक रहेगा। सही बात है। सेक्रेटरी साहब, अगर आप चाहे तो मेरे पास बहुत सारा जमीन है। मैं एक छोटा सा जमीन हॉस्पिटल के लिए दे सकती हूँ। और किसी को कुछ कहना है? हम लोग सहयोग तो कर सकते हैं अपने श्रमदान से। सरपंच जी, आप हॉस्पिटल लगवा दीजिए, हम लोग सब मिल के मदद करेंगे। अगर स्कूल में ही किसी दिन महीने एक बार हेल्थ चेक हो जाए तो अच्छा रहेगा। सही बात है। आशा वर्कर जी, आपको इसके बारे में कुछ कहना है? जी सरपंच जी, हम स्कूल में न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में भी बता सकते हैं, और सीजनल बीमारी जब तक हॉस्पिटल बंद नहीं जाता छोटा सा मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सही बात है। सेक्रेटरी जी, आप इसके बारे में और बता सकते हैं जो गांव का भला हो। मैंने हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, माली चेकअप, हेल्थ कैंप के बारे में नोट कर लिया है। इसके लिए प्लान बनाकर हम सरपंच जी और गांव वालों को जल्दी ही बताया जाएगा।
चौथे समस्या की ओर बढ़ते हुए, जो हमारे समाज में इतनी जल्दी से फैल रहा है और हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला बना रही है, और ये मुद्दा है नशे के लिए। और इस के विषय में किसी को कुछ शिकायत है तो बताइए। हाँ सरपंच जी, गांव के कई लड़के तंबाकू और शराब के नशे में फंसे हुए हैं। अब इस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ उपाय ढूंढ दीजिए। हाँ सही बात है, इससे पैसा बर्बाद होती है और सेहत भी खराब होती है। सरपंच जी, कुछ सख्त कदम जरूरी है। बिल्कुल सही है। नशे की वजह से घर परिवार परेशान है। महिलाओं को रोज टेंशन और पैसे की दिक्कत होती है। बहुत सही बात है। हाँ सरपंच जी, नशे ने मेरे पैसे, इज्जत सबको छीन लिया। अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मुझे मदद चाहिए और मैं नहीं चाहता हूँ कि और लोग मेरी तरफ फंसे। अच्छा है। बहुत अच्छे कमल। गलती मान लेना सुधार का पहला कदम होता है। बच्चे ही बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर हम बड़े नशे छोड़ दे तो अगली पीढ़ी बच सकती है। सही बात है। नशे सिर्फ एक आदत नहीं, एक बीमारी है जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हमारे गांव में एक काउंसलर की भी जरूरत है। और इसके बारे में और कुछ किसी को समाधान देना है तो बताइए। हाँ सरपंच जी, गांव से शराब की दुकानों को दूर कर दीजिए। अरे कैसे? हमारे सुविधान का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मौज मस्ती की भी जरूरत होती है। हाँ सही बात है। अरे मौज मस्ती के भी कई और तरीके हैं। हम सिर्फ नशे से मौज मस्ती नहीं कर सकते। जिस औरत का पति शराबी हो, उस परिवार पर क्या गुजरता है आप सोच नहीं सकते। ये भी सही बात है। जी आपकी बात भी सही है। और हम आशा वर्कर जी से कुछ सुनना चाहेंगे। मैं आशा वर्कर के ग्रुप में काम करते हुए पाया हूँ कि बहुत से लोग जागरूक नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बताए बातों का पूरा साल ध्यान रखें। धन्यवाद। और हमारे बीच एक एनजीओ से भी है और हम उसका विचार सुनना चाहेंगे। मैं एक एनजीओ से हूँ जो एक काउंसलर को जानती हूँ जो सोशल वर्क भी करता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको रेगुलर आना पड़ेगा और सहयोग करना होगा जिससे सुधार होगा। धन्यवाद। सेक्रेटरी जी, आप और इसमें और कुछ बताइए। हाँ जरूर सरपंच जी, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि गांव के शराब की दुकानें गांव से दूर होगा और आप लोग ऐसा होगा तो जरूर सुधार होगा। तो हम अगली समस्या की ओर बढ़ते हैं जो हमारा अंतिम भी है, जो हमारे पानी से जुड़ी हुई है। पानी की समस्या इतनी है कि क्या ही कहे, और हम इसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि जल ही जीवन है। और इसके बारे में किसी के पास कुछ शिकायत है तो बताइए। हाँ सरपंच जी, हमारे गांव में तो सबसे मुख्य समस्या पानी की है। हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ही मिलता है। अब इसका क्या करें हम लोग? अरे सरपंच जी, 2-3 बार की तो क्या बात करें, पानी आती तो है पर साफ नहीं, बोल करके इसका उपयोग करना पड़ता है। अब इसका क्या करें? हाँ सही बात है। सरपंच जी, पानी तो आता है, खेतों को भी समय से नहीं मिल पाता, जिसके वजह से फसल सब सूख जाती है। हाँ सही बात है। अभी ये सब तो समस्या हो गई, किसी का खास कुछ समाधान है तो बताइए।
हाँ सरपंच जी, गांव में हम बरसात के पानी को उपयोग में लाने के लिए हम छोटे छोटे डैम भी बना सकते हैं। सही बात है। सरपंच जी, हम लोग बरसात के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। हम लोग का गांव से जो पानी नालियों से आता है, अगर उसको साफ करें तो खेतों में भी इस्तेमाल लिया जा सकता है। हाँ, आप जो भी कह रहे हो सब सत्य है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमने पिछली बार ही सचिव जी से इसके बारे में बात की थी और नतीजा अभी आपको सचिव जी कुछ और बताएंगे। हाँ, सही बात है। इस पूरे क्षेत्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्लान आया है कि पानी के लिए प्लान था कि पानी का सप्लाई करने का था, लेकिन पानी के लिए भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि पानी को मिसयूज मत करिए। इसके लिए प्रयास किया जाए। हम करेंगे। और अभी हम सहायक सचिव जी से हम सोच समझ से जो भी फैसला किया, निर्णय लिया, उसके बारे में सुनना चाहेंगे। और उससे पहले हमारा दाता ऑपरेटर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम और जन्म तिथि सही नहीं है तो जल्द से जल्द सही कीजिए ताकि योजनाओं का आप लोग को लाभ मिले। धन्यवाद। तो आज हमने सबसे पहले स्वच्छता और प्लास्टिक से मुक्ति की बात की, जिसमें हमने निर्णय किया कि कोई कूड़ा बाहर में नहीं फेंकना, ना जलाएगा, सभी कूड़ा कूड़ेदान में डालेगा। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाएगा। डस्टबिन गांव में जगह जगह लगाया जाएगा। दूसरे स्कूल में सुधार के लिए युवा लोगों को एक्स्ट्रा क्लास में लेंगे। बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजा जाएगा। स्कूल का बजट जल्द से जल्द रिलीज होगा। तीसरा, स्वच्छता से जुड़ी बातों में हमने निर्णय किया कि नियमित हेल्थ कैंप लगेगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर गांव में जागरूकता बनाने का काम करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। हॉस्पिटल भी बनाने का प्रयास होगा। चौथा, नशे से जुड़ी समस्या में निर्णय किया गया कि बच्चों को नशे की चीजें नहीं बेची जाएंगी। शराब की दुकानों को गांव से दूर किया जाएगा। काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। लोगों को नियमित जाना होगा। पांचवा, पानी की समस्या के लिए सबसे पहले सभी को पानी का सही इस्तेमाल करना होगा। गंदे पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी को गांव में लगाने का प्रयास होगा। नियमित पानी सप्लाई के लिए वाटर डिपार्टमेंट से बात होगा। धन्यवाद। और हम ये सभा को तुम करते हुए आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आए और अपनी समस्या बताया। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि और फ्यूचर में जब ऐसी मुश्किल आए तो हम सब एक करके इसका समाधान निकालें। धन्यवाद। सरपंच जी, हमें भी एक समस्या है। जी बताइए। हमारे स्कूल की एक समस्या ये है कि स्कूल के गेट के सामने एक टॉयलेट बना हुआ है। उससे जो स्कूल का ब्यूटिफिकेशन है गेट का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। वहाँ पर एक शेड भी बना हुआ है जो पुकपुई गांव से ही संबंधित है और इन लोगों ने वो बनाया है।
हमारा स्कूल एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। लोग बाग आते हैं, वहाँ पर शेड के नीचे बैठ कर के शराब पीते हैं और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस समस्या का समाधान भी किया जाए और ये बताया जाए कि हमें क्या करना होगा, किसको लिखना होगा, थोड़ा इसकी भी जानकारी दी जाए। धन्यवाद। बहुत सही बात है। हमने और एक समस्या सुनी जो हमारे स्कूल के बारे में है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे वो ठीक करने के लिए। जो यहाँ पे एक बाथरूम के बारे में बोल रहे थे, बाथरूम थोड़ा बंद है अभी, हम उसको भी ठीक करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो भी शराब पीता है उधर, उसको अभी हम यहाँ से वॉलंटियर लगवाएंगे और वॉलंटियर से पकड़ा जाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा या सस्पेंड भी मिल जा सकता है। धन्यवाद। तो सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम का जो महत्व था या जो उसकी सीख है, जो वैल्यूज है, उसको हम अपने पूरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जब ये प्रोग्राम होगा तो मैं आशा करता हूं कि इस बार मुझे सीनियर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और मेरे सारे जूनियर जितने भी हैं वो अपना नाम आगे बढ़ चढ़ कर देंगे। करेंगे? हाँ करेंगे। जूनियर स्टूडेंट से करेंगे? नाम दोगे? ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगली बार सारे जूनियर से इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करेंगे। और अभी बिल्कुल से हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। सबसे पहले गर्ल्स जाएंगी, मूव करेंगी, सीनियर स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रोग्राम जो हुआ है, क्या समझ में आया? कर लीजिए। इस प्रोग्राम से आप सभी को क्या समझ में आया? कोई भी जूनियर बच्चा क्या समझ में आया है? गलत बोल रहा है, अगर गलत उठा है कोई बात नहीं, जो समझ में आया बोलना है। क्या समझ में आया? कोई भी बोलना चाहेगा? हमें प्लास्टिक को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। और क्या समझ में आया? और क्या समझ में आया? जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो मेन काम होता है वो हमारे पूरे गांव को स्वच्छ बनाना, पानी, बिजली या हम कहें कि मेडिकल से संबंधित जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको दूर करना, और कौन कौन उन समस्याओं को दूर कर सकता है इसके बारे में भी हमें ये जानकारी इसी से मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में वार्ड मेंबर भी बैठे हुए हैं, आशा वर्कर भी है, या हम कहें कि एक स्कूल का हेडमास्टर भी वहाँ पर है, सहायक सचिव भी दिए हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी दिए हुए हैं। तो जब ग्राम सभा कंडक्ट की जाती है तो इसी तरह से उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो सारे मेंबर्स मिलकर के जो गांव की समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढते हैं। अकेला एक सरपंच नहीं कर सकता, सभी लोग मिलकर के इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बोला। इवन 2 दिन से सर तैयारी करवा रहे हैं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डिस्टरबेंस के सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से ये सभा को कंडक्ट कराया है, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप ही नहीं, मुझे भी इससे जो ये सीख मिलती है कि इस तरह से कभी कभी हम स्कूल की समस्याओं के लिए भी कोई बच्चों से, टीचर को मिलकर के कोई समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक सभा कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सच में एक आप लोगों के लिए एक लेसन है, जिससे आप लोग ये सीखो
कि ग्राम पंचायत क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है। ठीक है, तो सच में ये बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया आलोक सर ने, और सभी बच्चों को जो ये बधाई के पात्र हैं, आलोक सर को भी है जो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से ये कंडक्ट कराया है। आप सब भी यहाँ पर सुन रहे हैं, केवल सुन के एंजॉय नहीं करना है, इसको सच में सीखना है। हमारे स्कूल में भी प्लास्टिक होता है, हमारे स्कूल में भी पानी की समस्या है, जैसा कि बताया कि पानी को कैसे उपयोग में लेना है। हमारे स्कूल में भी हमारा स्कूल अपने आप में एक गांव है, हमारा स्कूल अपने आप में ही एक गांव है, और इस गांव में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और उनका समाधान कौन कर सकता है? हम। ठीक है, और प्लास्टिक को इधर उधर फेंक रहे हैं, पानी को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, या और भी जो समस्याएं हो सकती है। हमने मेडिकल की बात करें तो हमारे यहाँ पर नर्स मिस भी रहती है, हमारे यहाँ पर और डिपार्टमेंट भी हैं, हम भी गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सच में ये ग्राम सभा एक बहुत अच्छा लेसन है। शायद यूथ पार्लियामेंट जब लास्ट ईयर कराई जाती थी, तो पार्लियामेंट एक बड़ा सिस्टम है, उसके बारे में हो सकता है कि बच्चे नहीं सीख पाते, लेकिन ये ग्राम सभा एक छोटा प्रोग्राम है, और सच में इससे बहुत लर्निंग होती है। थैंक यू। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, राम बाबू भैया और भी सारे लोग, और सारे टीचर्स का बहुत ही सहयोग रहा। उन्होंने बच्चों को छोड़ा अरेंजमेंट करने के लिए और सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार मैं सबका धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। और रिफ्रेशमेंट बिल्कुल मिलेगा, और अभी तो